Okay, now the chapter is democratic form of government, and chapter number 8, democratic form of government, and the first paragraph I will read. The prefects of the primary school had to be elected. Okay, there was a lot of bustle. The Hindi meaning of bustle is halchal. In my school, for the investiture ceremony, that means a cultural ceremony, chart and posters had been put up on all the notice boards. Qualifying rounds were being conducted. The selected students were to be interviewed by the principal. That means your principal has the power to select the prefects. Okay, the decision would be compiled with our boards to select the prefects. The meaning of compiled is collected. Why is it necessary to appoint someone to manage us? Can't we imagine ourselves and take our own decisions? Now the first point is democracy. Democracy is a form of government in which the people have a say in who should hold power and how the power should be used. That means democracy in Hindi meaning is loktantra. The word democracy is derived. The meaning of derived is खोजा गया. The meaning of derived is खोजा गया. The word democracy is derived from two Greek words, demos, and which means citizens, and the word kratos, which means power to rule, and the word kratos, which means power to rule, and the two words which combined and the one word is coming in our mind, that is democracy. So a democratic form of government is always countable to the people. Yes, it is the government of the people, by the people and for the people. That means democratic government is of the people, मतलब people के लिए, by the people मतलब people के द्वारा, and for the people मतलब people के point of view से. ठीक है, India and the USA and the UK are some of the democratic countries. Now see page number 63. All of you now see page number 63. I'm going to show page number 63. Open in your book page number 63. Okay. Keep quiet. Okay. In our country, elections to the parliament and state assemblies. Okay, students, now the meaning of, the Hindi meaning of state assembly is Rajya Vidhan Sabha. Write down in the upper side of state assembly. State assembly Hindi meaning होती है Rajya Vidhan Sabha. State assemblies are held every 5 years. ओके, दैट मीन्स जो स्टेट असेंबली है वो कब कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, 5 सालों के बाद. Each and every citizen of India who has attained, the Hindi meaning of attend is received the age of 18 years and above. Attend का हिंदी मीनिंग होता है बेटा प्राप्त. Attend ATTAINED. Attend means होता है प्राप्त, मतलब received. The age of 18 years and above has the right to vote in the elections. This is called universal adult franchisee. This is called universal adult franchisee. Now the Hindi meaning of universal adult franchisee is सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. The Hindi meaning of universal adult franchisee is सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. All right. Now we will learn basic features of democratic government. Now the first point is basic features में पहला point है people elect the representative for a fixed period. That means we have to select the representative for fixed period. हम select करते हैं, जब voting होता है तो हम जाकर खुद select करते हैं. Representative makes law and govern the people. मतलब representatives has to right to make the law and govern the people. And people enjoy freedom of speech, expression and information. They have the rights to form, join and quit any political party or organization. That means people
अब पीपल्स के पास पीपल्स हैज़ टू राइट टू इन्जॉय देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हमारे पास पूरा अधिकार है कुछ भी कहने का, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का, अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने का। दे हैव द राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन एंड क्वाइट एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइज, मतलब वी हैव टू राइट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पास पूरा अधिकार है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का। ऑल राइट, law is supreme and all the citizens are equal in the eyes of the law, means in the eyes of the law मतलब कानून की नज़र में सब कुछ, कानून की नज़र में सभी लोग सेम हैं, कानून की नज़र में सभी लोग सेम हैं। Judges must be free to work independently without being under the influence of any party. That means judges has to right to free to take the decision independently and under the influence of any party, without being under the influence of any party. They should be honest and deliver justice impartially. The meaning, Hindi meaning of impartially, that is निष्पक्ष, मतलब बिना पार्शलिटी करने वाला। Okay, the last point number 6 is the party in the majority form the government and the party in the minority form the opposition party. देखिए minority form में आपके बहुत सी कास्ट कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं और मेजॉरिटी फॉर्म्स में भी बहुत सी कास्ट कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, और ये पार्टी जो है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को कंबाइन करके ही बनता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन। An election is an organized process in which people vote to choose the people who shall represent them in the parliament or in the state assembly. देखिए अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, द हिंदी मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज संसद and the Hindi meaning of state assembly is राज्य विधानसभा। and now we should know what is the meaning of election. So an election is an organized process, एक तरह का organized process है in which people vote to choose the people, means we have to right to choose a perfect representative for the country, to govern the country or for govern the country, whatever you want to say. Okay, now the importance of election. election करवाने के पीछे क्या मकसद होता है और उसका महत्व क्या है? Now the first point is choice of leadership. Elections pave the way for the citizen of India to choose their own leaders by voting. First of all, PAVE, pave. pave का मतलब होता है रास्ता क्लियर करना या प्रशस्त करना। ओके, सो चॉइस ऑफ लीडरशिप मतलब सबसे पहले इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि for the India to choose their vote own leadership by voting the ensure the will of the people is reflected in the election candidate. मतलब किसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव की बात यहाँ हो रही है जिसको आप चाहें तो लीडरशिप के लिए ला सकते हैं, बट उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो इंडिया को या हमारी कंट्री को गवर्न कर सके। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 दैट इज चेंज ऑफ लीडरशिप। इलेक्शंस ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द पब्लिक टू वॉइस देयर resentment against the ruling party. अगर the Hindi meaning of resentment is नाराजगी। बच्चों, if you want to write the Hindi meaning for the difficult words, then write upper of the difficult words. Okay, so the Hindi meaning of resentment is नाराजगी। तो अगर change of leadership means if you want to change a particular representative or political party's person, you are not satisfied with their work, means अगर आप उससे satisfied नहीं हैं तो you have to right to change him or her। मतलब आपके पास पूरा right है जब भी next elections होगा या middle of the session में जो interim elections होंगे उसमें if you want to change then go ahead. Okay, all right, now open page number 64. All of you now open page number 64. कितना है? Okay, now open page number 64 बेटा। I'm open. Yes बेटा। Okay, so the third point is beta political parties, political participation.
Elections open the door for new issues to be raised in the public domains. If a citizen wishes to bring out reforms that are not on the agenda of the any party, he or she is free to contest the elections either independently or by forming a party. That means political participation का मतलब ये होता है कि elections open होता है, अगर कोई नया issue, अगर कोई नई problem raised हुई है, then you have to write to convey your messages. Means if a citizen wishes to bring out reform that are not on the agenda of any party, मतलब अगर कोई पार्टी ने अपनी प्री प्लानिंग के जो भी प्लानिंग्स उन्होंने की हुई थी कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, अगर वो वैसा नहीं करते हैं, then you have to write to contest the election either independently or forming a new party. आपके पास नई पार्टी को मतलब ऑर्गेनाइज करने का क्या, उसको नई पार्टी फॉर्म करने का भी राइट होता है. ओके, नाउ the next point is point number 4, system of self. Elections occur. The Hindi meaning of occur is घटित होना. The Hindi meaning of occur is घटित होना. Occur at the regular intervals in our country. They take place आफ्टर एवरी 5 years. देखिए इलेक्शंस हर 5 साल पे होते हैं. आप लोग को पता है अभी अपकमिंग इलेक्शंस 2022 में होगा. ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है, वो जो राज्य विधानसभा इलेक्शंस है वो 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा. द रूलिंग पार्टी इज केप्ट इन चेक एज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लूजिंग पावर. दैट मीन्स जो रूलिंग. ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. I'm clear. Okay, so the rule, देखिए जब भी every 5 years when the next when Yes, ma'am. now listen, just keep quiet, I said, don't talk in the middle, I said. Now elections occur regular intervals in our country. They take place after every 5 years. At that time the ruling party is kept in check as there is always a risk of losing power. जो भी पार्टी अभी ongoing condition में है, जैसे अभी बीजेपी जो है वो गवर्न कर रही है कंट्री को, राइट? एम आई राइट? बाकी लोग पढ़िए, आसानी से बताएंगे बाकी लोग. What is going on class 5th? This is very ridiculous. उसी चैप्टर के अगर क्वेश्चन पढ़िए. I said just mute yourself, all of you. नाउ लिसन, अभी बीजेपी आपकी ऑनगोइंग कंडीशन में चल रही है, तो अभी 2022 में जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें उनको थोड़ा टेंशन ये बना रहेगा कि क्या पता हमारी जो पार्टी है वो अगले इलेक्शन को जीत पाएगी या कोई और पार्टी आकर गवर्न करेगी. ठीक है, तो सिमिलरली द रूलिंग पार्टी इज केप्ट इन चेक एज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लूजिंग पावर. इट हेल्प द पब्लिक टू रिव्यू देयर परफॉर्मेंसेज. ठीक है, पब्लिक रिव्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विनिंग द पार्टी, क्योंकि अगर हम खुश हैं तो हम उन्हें वोट करेंगे, अगर हम खुश नहीं हैं देन हम वोट नहीं करेंगे. द इलेक्शन कमीशन मेंटेन अ लिस्ट ऑफ वोटर्स कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल. वोटिंग इज डन in the transparent manner with the help of a secret ballot. पहले के जो इलेक्शंस होते थे बच्चों, वो बैलेट बॉक्स के थ्रू होते थे. हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ पेज नंबर 64 इन सी. दिस इज द सीक्रेट बैलेट बॉक्स. यस, जो पहले के इलेक्शंस होते थे वो सीक्रेट बैलेट बॉक्स में आपका जो भी कैंडिडेट है जिसको आप पसंद करते हैं, जस्ट राइट द नेम ऑफ द पेपर एंड उसको आपको बैलेट बॉक्स में डाल देना है. जो कोई नहीं जानेगा कि आपने किसका नाम लिखा है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब लोकतांत्रिक कंट्री में डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक. द सिटीजन होल्ड द सुप्रीम पावर. जो हम सिटीजन्स हैं और हमारे पास पूरा पावर होता है, सुप्रीम पावर हमारे पास ही होता है. दे यूज देयर पावर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट. आप लोगों में से कितने बच्चों को पता है कि कौन से एज के बाद आप एबल हो जाते हैं वोटिंग के लिए?
Very good. 18 years. When you completed 18 years, you are able to write. You are able to write to vote. आपकी ability हो जाती है, आप वोट दे सकते हैं. A democratic government depends upon the will of the people and look after the interests of the people. हमारे पास जो पावर होती है उससे हम एक रिप्रेजेंटेटिव को फॉर्म करते हैं और वो हमारी आवाज़ को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब PM, CM और ऊपर तक पहुंचाता है. एनी हार्म डन टू द स्टेट बाय द डिसऑनेस्ट एंड करप्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल वुड बी एन इनडायरेक्ट लूज टू द सिटीजन. देखिए, अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हम चूज कर लेते हैं जो कि करप्ट हो, मतलब धोखेबाज हो या गद्दार हो या देशद्रोही हो, तो उससे किसको लॉस होता है बताइए? Exactly, very good, very good. Yes, very good, class 5th. That means you all understand very well the chapter, right? Okay, that means अगर कोई धोखेबाज या देशद्रोही टाइप का रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा लॉस हमारा ही होता है. क्यों? क्योंकि वो हमसे बिल्कुल इलीगल वे में पैसे कलेक्ट करेगा, बहुत ही इनमैनर्ड वे में काम करेगा, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. Therefore the citizen of a democratic country play a very important role. इसीलिए कहा जाता है कि citizens का बहुत important role है और अगर आप 18 years के हो चुके हैं तो चाहे आप कितने भी बिजी हों वोट देने ज़रूर जाएं. Okay, now role of citizens. Citizens का रोल क्या है? A good citizen must have the following qualities. क्वालिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही शी मस्ट बी इंटेलिजेंट. सबसे पहले आपका इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. सपोज कि आपके घर से कोई खड़ा हुआ है और आपके सामने जो ऑपोजिशन पार्टी में जो खड़ा है, आपको ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर से खड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, देन आप किसको वोट देंगे? मतलब ऑपोजिशन पार्टी को वोट देंगे, राइट? Exactly. Very good decision, class 5th. Well done. Keep it up. So this is called quality of self-control and the sense of responsibility. क्योंकि एग्जैक्टली ओके, आपके गांव में होता है, बहुत अच्छी बात है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं करनी है. जब आप एक गुड सिटीजन हो तो आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है. आपको क्या करना है? अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना है और दिखाना है कि जो सही है वही सही है. ठीक है, मस्ट बी लॉयल टू द कंट्री एंड शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस. इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कंट्री के प्रति लॉयल होना पड़ेगा. मतलब अगर आप देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो वहाँ आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सपोज कि आपके स्कूल में आप जब क्लास में एथी वेथी नहीं हो जाएगा. व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज यू यूज्ड? लिसन, सुनिए, अगर आप अपने स्कूल में हैं, क्लास में हैं और आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा गलत कर रहा है तो क्या, और वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, आप क्या करेंगे? उसको रोकेंगे या फिर उसको बोलेंगे नहीं करो जो कर रहे हो? क्या करेंगे? Exactly. That means you must be loyal to, yes, that means you must be loyal for your friend. So similarly, you must be loyal to the country. अगर आप कंट्री में किसी को देख रहे हैं गलत करते हुए अपने आसपास, तो आप उसको इमीडिएटली रोकेंगे कि no, this is not good. Please don't do that. Okay, now the third point is should obey the law and made by the government. Should obey the law का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन बनाया है, जैसे फर्स्ट रूल जैसे गवर्नमेंट बनाती है कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो ऑल ऑफ यू जस्ट वियर मास्क व्हेन यू गोइंग आउटसाइड ऑफ द हाउस. ठीक है, तो क्या हमें वो लॉ और वो रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए? एग्जैक्टली शुड ओबे द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट. क्यों? और गवर्नमेंट ने एक रूल और बनाया है कि जो भी ओकेजन होंगे, मैरिज सेरेमनी या व्हाटएवर, उसमें 50 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे. तो वी शुड ओबे द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर ज़्यादा होंगे तो हम ही मरेंगे और तो कोई नहीं मरेगा. ठीक है, एग्जैक्टली
हाँ, तो that means we should obey the law which is made by the government. Okay, then we called a good citizen. Point number 4 is should always think about the betterment of the society. हमेशा सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करें कि कंट्री में सब कुछ अच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ. मेरी एक आदत है कि मैं अगर बीच रोड पे भी कुछ ऐसा देख लेती हूँ गिरा हुआ जो कि नहीं रहना चाहिए, जिसको साइड में होना चाहिए, तो मैं गाड़ी रोक कर उस चीज़ को साइड में कर देती हूँ ताकि रात में या कोई बूढ़े या कोई भी आए और पैर से लग के गिर जाए, ठोकर लग जाए, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑलवेज थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए तो वी शुड डेफिनेटली डू फॉर आवर सोसाइटी. ठीक है, नाउ द 5th पॉइंट इज शुड पे टैक्सेस ऑनेस्टली टू द स्टेट ऑन टाइम. देखिए, टैक्सेस का जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्स जो भी लिया जाता है हमसे वो हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए होता है. हम जो भी टैक्स पे करते हैं, चाहे वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या हाउस टैक्स हो, जो भी टैक्स पे करते हैं उससे क्या होता है कि वो हमारी कंट्री के बेटरमेंट या कंट्री के प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, पॉइंट नंबर 6 शुड यूज़ हिज राइट्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. अपने राइट्स का, अपने दायित्वों का इस्तेमाल करिए. जो भी पावर पोजीशन आपको मिली है उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, बट किसी को चोट पहुंचा के नहीं. ठीक है, कि भाई ये तो मेरा दुश्मन था, चलो अब हमको पावर मिली है, इसको पहले जेल पहुंचाते हैं. दिस इज़ नॉट गुड. बताओ ये सही है या गलत? देखिए आशीष पटेल ने बुक भी गलत. एग्जैक्टली, तो वो गलत है. Point number 7 has the right to vote and elect a representative and honest candidate for the country, and he and she must not sell his and her vote for the sake of the money. ठीक है, कभी भी पैसे लेकर वोट का लेन देन नहीं होना चाहिए. जैसे आपने कई मूवी में देखा होगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ देकर वोट्स खरीद लिए जाते हैं. That is absolutely wrong. So tell me, is it right or wrong? Very good. It is wrong. Point number 8 should be disciplined and know how to live properly. हमें बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि हमें कैसे रहना है. मतलब ऐसा नहीं कि रोड पे चल रहे हैं तो रोड साइड पे सोए हुए गरीबों के ऊपर से गाड़ी चला दे. ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हमें किसी की लाइफ लेने का कोई राइट नहीं है. ठीक है, पॉइंट नंबर 9 दैट इज शुड हैव अ सेंस ऑफ लव एंड कोऑपरेशन. हमारे अंदर प्यार और कोऑपरेशन होना चाहिए. अगर हमारी ज़रूरत किसी को दिख रही है कि हमारी हेल्प करने से उसको कुछ फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उसकी मदद करिए. अगर आपको लगता है कि आपके हेल्प करने से सामने वाले को प्रॉफिट है, डेफिनेटली उसकी प्रॉफिट में उसकी हेल्प करिए जिससे उसको कुछ प्रॉफिट मिले. ठीक है, Point number 10 should have a feeling of love not only for the citizen of the country but also for the whole human civilization. अब देखिए, छोटे छोटे बच्चों को आप भीख मांगते हुए देखे होंगे रास्ते में. आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए. यू शुड हैव अ फीलिंग ऑफ लव. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है, अगर आप कहीं खाना खाने गए और छोटा गरीब बच्चा बाहर भूख से तड़प रहा है, वो आपको देख रहा है पर कुछ कह नहीं पा रहा है, तो इमिडिएटली अगर आप चाहें तो कुछ ऑर्डर उसके लिए भी कर सकते हैं. अगर आप 100 रुपये का भी खाना उसको खिला देंगे तो आप लोग के पैसे कम नहीं हो जाएंगे. क्यों? है कि नहीं? ओके, now point number 11 that is should set an example for the fellow citizens with his and her honesty. अपना एक एग्जाम्पल सेट करिए बच्चों. देखिए, आप किसी को फॉलो करें दैट नॉट अ बिग डील. अगर आप किसी को फॉलो करते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा काम करना बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको फॉलो करें. नाउ चॉइस इज़ योर्स. आप क्या चाहते हैं, दूसरों को फॉलो करना कि दूसरे आपको फॉलो करें? टेल मी. Exactly. This is my opinion. Please do yourself. Please prepare yourself as much as better. Prepare yourself as much as better कि दूसरे लोग आपको follow करें. Okay? So this was the explanation of I said keep quiet. So this was the explanation of chapter number 8. डेमोक्रेटिक फॉर्म एट गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट. आई होप कि आप लोग को पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा. क्यों?